Hi guys, so welcome to Career Nectar. Your dream is our passion. In this video today we'll see regarding the CWC JTA Junior Technical Assistant and FCI AG Assistant Grade 3 Technical, that is the professional knowledge. And today I will cover botany section. I will go through the MCQ, and that those MCQs will be in the mixed form. Okay, so it may be from the plant it may be from the your kingdom section, or any or respiration chapter, or plant respiration. So it will cover a lot of things. Okay, so just see whole video, and if you liked that I have to make a video on such a particular topic of botany or zoology or agriculture, do state it in your comments in the comment section. Okay, so आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों. बॉटनी के सेक्शन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR हैज़ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज. इसका वेवलेंथ रेंज कितना होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? आपका जो वेवलेंथ होता है वो बेसिकली कितना होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है. ऑप्शंस आर 400 to 700 mm, 300 to 600 mm, 150 to 450 mm या 650 to 950 mm. तो उसका आंसर क्या है आपको देना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज योर सेल्फ कि आप कितने आपके प्रिपरेशन हो रहे हैं, बिकॉज JT इज़ इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ इन द मे. CWC JT is in the next month. Okay, but also you have to remember that FCI is not disclosed any date till now, so your exam may be coming soon, so do prepare well for your एग्ज़ाम. ओके, तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? लेट्स सी, दिस इज 400 to 700 mm इज़ योर करेक्ट आंसर. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. बेसिकली फॉर द photosynthesis you require some wavelength for it. Okay, you require the wavelength, and for that wavelength they are asking the question. Okay, so let's move to the next question. In C4 plants Kelvin cycle occurs. कहाँ पे Kelvin cycle होता है? In case of your C4 plants, where is the basically Kelvin cycle occurs? Now first of all you have to understand regarding the C4 plants, what are they? Basically these are the plants which produces four carbon compound. For example, what is the four carbon compound? Because C4, the name itself indicating that the carbon compound is having the four. What is that four? That is a four carbon compound. Now four carbon compound, what is the name of the compound? Is oxaloacetic acid. They are producing that acid which is known as oxaloacetic acid. Now that the oxaloacetic acid entered into the Calvin cycle basically. Okay, and the important some of the C4 plants you have to remember. What are the C4 plants? Maize is a C4 plant. Okay, also you have to remember another C4 plant. Many times in your paper they are asking sugarcane. Sugarcane is also a C4 plant. Maize and sugarcane are the C4 plants. Okay, and basically another important terms they are required for the C4 plants is that Cranch anatomy is present in the C4 plants. So in the question they may ask you anything. See, I am going to the depth of the question, maybe from the C4 whatever I am discussing now, any one of the question you may find in your exam. Now you have to take it down in your copy so that you can answer them all. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल जो होता है, बिफोर कैल्विन साइकिल ऑक्सालिक एसिटिक एसिड फॉर्म्स. नाउ ऑक्सालिक एसिटिक एसिड विद दैट इट एंटर्स इनटू द कैल्विन साइकिल. नाउ दे आर आस्किंग वेयर दिस कैल्विन साइकिल ऑकर्स. Actually this is occurs in the bundle sheath of chloroplast, but where? So answer to this question will be stroma of bundle sheath of chloroplast. Okay, the answer to this question is option number B. Let's move to the third question. What is lichenometry? या फिर lichenometry. What is lichenometry? You have to tell what is the different meaning of this lichenometry. Basically this is a method, or it is a study of the age of the rock surfaces. What is basically it's a rock surfaces study. Okay, rock surfaces study. Now rock surfaces study based on the size of the lichen thalli. That's जो लाइकेन का थाली होता है, जिस
Theli, whatever you are telling, that this is the study of the exposed rock surface, okay, and based on the size of the lichen theli, that is your lichenometry. Acid concentration in CAM plants is more during. Now you have to understand what is this CAM, CAM. This is basically Crocallian. This is basically a Crocallian acid metabolism. Crassulacean acid metabolism. Now, in case of your Crassulacean acid metabolism, how this Crassulian name came? Now, Crassulium, when the scientist first discovered that it was in the Crassulaceae family, and from there it named as the Crassulacean acid metabolism. Okay, and this is basically found in the arid region. So, arid region. If I ask you the name of the plants, of course, the plants will be like cactus or the succulent plants. So cactus is one of the example of CAM plants. First of all, you understand this much of concept, and in case of your CAM plants, you have the stomata, right? Stomata in the leaves will be closed during the day, and they will be opening in the night to collect the CO2. Why they are closed in the daytime? Because to reduce the transpiration, to reduce the transpiration. You are getting me what I am telling? This is acid concentration in CAM plants is more during the, so acid concentration will be more in the night because they are collecting the CO2 in the night, not in the day. Why? Because the stomata is closed in the daytime. Why their stomata is closed in the daytime? Because to reduce the evapotranspiration. ठीक है, CAM plants का एग्जाम्पल याद रखना, कैक्टस. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. जितना समझा सकता हूँ पूरे वीडियो में उतना समझा दूंगा आपको कि आपको दिक्कत ना हो. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस चेक. आउट ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज केमिकली सिमिलर टू. निम्न में से कौन से एमाइनो एसिड के साथ इंडोल 3 एसिटिक एसिड का सिमिलर, केमिकली सिमिलर है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रिप्टोपेन. दिस इज बेसिकली ए नॉर्मल क्वेश्चन. आपको अगर पता है तो ट्रिप्टोपेन के साथ इसको आपको बता सकते हो. फ्लावरिंग डिपेंडिंग ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट. जो फ्लावरिंग होता है दैट्स बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कोल्ड ट्रीटमेंट. इफ़ यू आर गिविंग द कोल्ड ट्रीटमेंट टू द फ्लावरिंग to get the flower basically, so flowering depending on the cold treatment, we call it a vernalization. And you know this, what is vernalization? We have studied in the class 12 also. Auxin is produced at which part of the plant? Auxin basically is a phytohormone. So phytohormones are very important in case of your exam point of view. They are basically auxin, gibberellin, cytokinin. These are indole 3 acetic, this IAA. तो ये सारे पेपर में पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, तो ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड एट विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो ऑक्सिन इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल, दैट इज इन द टॉप. ओके, सो इट्स प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल रीजन. Ripening of banana is associated with the sudden rise in. See, ripening of banana or ripening of the many of the, there are two type of climateric fruits and non-climateric fruits. So you have to know the difference between them also. ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होता है, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होता है. उनमें क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो उसमें. ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन हैव ए लुक कि आप कितना वीडियो को देख रहे हो, कितने इंटरेस्टेड हो, कितने ऐसे वीडियो आप चाहते हो. ठीक है, तो राइपनिंग जो बेसिकली होता है वो फाइटोहॉर्मोन्स इथाइलिन की वजह से होता है. मैक्सिमम केसेस इथाइलिन इज द केस. नाउ इथाइलिन जो होते हैं वो फ्रूट राइपनिंग कराता है. तो आपको पूछा राइपनिंग ऑफ बनाना इज एसोसिएटेड विद द सडन राइज ऑफ इथाइलिन, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. देखो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो दैट्स नथिंग बिग. रूबिस्को कैटालाइसिस रिएक्शन बिटवीन. अब रूबिस्को आपको पता होना चाहिए रूबिस्को है क्या. ठीक है, रूबिस्को ये मोस्ट एबांडेंट प्रोटीन इन द अर्थ है. ठीक है, और दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन योर रिएक्शन.
in the plants, ribulose 1,5 biphosphate and CO2. CO2 और RUBP जो बोलते हो आप, राइबुलोस बाइफॉस्फेट 1,5 बाइफॉस्फेट के बीच में ये रिएक्शन होता है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस कैटालाइसिस आर राइबुलोस 1,5 biphosphate and CO2. How many CO2 molecule is required to produce one molecule of glucose in Carbon cycle? This is a very halwa question. You don't require anything. इसमें तो आपको सबको पता होगा कि CO2 कितना मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C6. According to the fluid mosaic model, plasma membrane is made up of. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मेड अप ऑफ है, किससे बना हुआ है, ये बताना है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा और वही से क्वेश्चन पिक किया मैंने. अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ. तो बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स मतलब एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. ओके, तो फॉस्फोलिपिड एंड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. इन प्लांट पेरियोक्सियम्स आर एसोसिएटेड विथ. पेरियोक्सियम्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं बताइए आप, ठीक है. ऑप्शंस आर फोटोसिंथेसिस, फोटोप्रियोडिज्म, फोटोट्रोपिज्म या फोटो रेस्पिरेशन. तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है. फोटो रेस्पिरेशन से पेरियोसोम्स जो है एसोसिएटेड है. एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम. मशरूम इज इम्पॉर्टेंट एंड बेसिकली ये फंगस है. तो ये जो एडिबल पार्ट है क्या है, तो आपको पता है ये सारी चीज़ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो बेसिकली फंजा रहता है. तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द मशरूम, तो इट्स ए वेसिडियोकार्प. आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेसिडियोकार्प. सेल वॉल पॉजेस. सेल वॉल क्या, बहुत सारे सेल वॉल बहुत सारे से बना होता है. तो यू हैव टू नो द कंपोजिशन में भी. तो आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल वॉल पॉजेस, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है क्या होता है. तो इट मे बी सेलुलोज, इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी हेमीसेलुलोज. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस. मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेमेला. मिडिल लेमेला का मेन कंपोनेंट क्या है, देखो मिडिल लेमेला में मेन कंपोनेंट होता है पैक्टिन. पैक्टिन जो है आपका मेन कंपोनेंट है. ओके, हु प्रपोज द एसेंट ऑफ सैप. देखो एसेंट्स ऑफ सैप जो होता है वो आपको जाइलम टिश्यू वाले चैप्टर में प्लांट में आपने पढ़ा होगा. एसेंट ऑफ सैप में क्या होता है, दिस इज बेसिकली द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द क्राउन. जाइलम टिश्यू में ये होता है कि एसेंट ऑफ सैप इन द जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज नथिंग बट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टू द फ्रॉम द रूट्स टू द क्राउन. तो ये बेसिकली जैसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने इसको प्रपोज किया था. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. इन ए टारगेट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो. टारगेट सेल में क्या जीरो होता है, सबको पता है. टारगेट सेल में सक्शन प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है. सक्शन प्रेशर जो होता है वो जीरो होता है. सक्शन प्रेशर जीरो होता है, इसलिए वो वाटर ले नहीं पाता है. दैट्स सक्शन प्रेशर विल बी जीरो एट दैट टाइम, ठीक है. मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस. जो मूवमेंट होता है वाटर का थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, वो टर्गर प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है. टर्गर प्रेशर जनरेट करता है, दैट प्रोड्यूसेस द टर्गर प्रेशर. NADPH2 is generated through. Now what is the meaning of this NADPH2? अपने ATP NADPH ये सब PS1 PS2 वगैरह पढ़े होंगे आपने, ठीक है. तो ये जो NADPH2 होता है ये बेसिकली जनरेट होता है PS1 में, ठीक है. क्रान जेनाटोमी, मैंने थोड़ी देर पहले जब C4 प्लांट्स पढ़ा रहा था मैं तभी भी बताया मैंने कि C3 C4 प्लांट्स में होता क्या है, बेसिक क्या क्या चीज़ें होते हैं वो सारे थोड़े बहुत डिस्कस कर दिया था मैंने इसी वीडियो में. अब देखो जो C3 प्लांट्स होता है वो बेसिकली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, तभी वो 3 कार्बन का एसिड रहता है और बिकॉज ऑफ दैट दे आर टर्म्ड एज C3.
One is C4 because of the four carbon compound, four carbon acid they are forming, and you know that's oxaloacetic acid. Now in case of, and I have also given you the example of C4 plants, ठीक है, दो मेज एंड शुगर केन है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रंच एनाटोमी, वहाँ पे भी मैंने जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, इफ़ समवन इज प्रिपेयरिंग द नोट्स ही माइट हैव बीन नोटिसिंग कि मैं जो क्रंच एनाटोमी वहाँ पे भी बोला था, क्रंच एनाटोमी इज प्रेजेंट इन द C4 प्लांट्स। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी C4 प्लांट्स। तो आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनीथिंग विच इज़ मतलब एकदम आउट ऑफ कंटेंट हो आपका। तो बॉटनी में ऐसे आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं पेपर में। एंड इफ़ यू रिक्वायर मोर एंड मोर वीडियोस डू post in the comment section. I will be trying to post some regular videos before your exam. Okay, so this is the end of our session, guys. Thank you and have a nice day. And मिलते अगले वीडियो में। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, ठीक है, बाय।